Next, a patient comes to you with blue sclera, sparse hair, pathological fractures of the bone. These are pathognomic to which bone disorder. Okay, this is due to defect in which of the following collagen? This is due to defect in type 1 collagen. ठीक है, blue sclera, sparse hair और pathological fractures of bone are due to defect in type 1 collagen. ठीक है. The following scenario describes the case of osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta is a serious disease resulting from abnormality in the type 1 collagen. Type 1 collagen जो है उसमें abnormality की वजह से osteogenesis imperfecta होता है, which is most commonly manifest as the fragility of the bones. Alright. The chief clinical characteristic of osteogenesis imperfecta is extreme fragility, extreme porosity of the bones with an attendant proneness to fracture. मतलब एकदम proneness रहती है to fracture. A second characteristic clinical feature of osteogenesis imperfecta is the occurrence of pale blue sclera. इसमें pale blue sclera दिखाई देता है. The sclera are abnormally thin and for this reason the pigmented choroid shows through the sclera and shows bluish color. स्क्लेरा बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है जिसकी वजह से पिगमेंटेड कॉरॉइड लेयर्स होती है वो दिखाई देता है पीछे से, तो ब्लूइश कलर आता है इसकी वजह से. द फॉलोइंग सिनेरियो डिस्क्राइब्स द केस ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइलैंड्स एंड कॉर्ड्स ऑफ एपिथेलियम इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू आर सीन वेयर. तो दे आर सीन इन प्लेक्सीफॉर्म अमीलोब्लास्टोमा. 6 histopathological types of ameloblastoma are recognized. There are follicular, acanthomatous, granular cell, basal cell, desmoplastic, and plexiform. In the plexiform ameloblastoma, the ameloblast-like tumor cells are arranged in irregular masses or more frequently as a network of interconnecting strands and cords of cell. Each of these masses or strands are bounded by a layer of columnar cells. हर एक मास जो सेल्स का होगा वो लेयर ऑफ कॉलमनर सेल से बाउंड होता है. एंड इन बिटवीन दीज लेयर्स देयर इज अ स्टेलेट रेटिकुलम लाइक सेल्स. इन दोनों के बीच में स्टेलेट रेटिकुलम लाइक सेल्स भी होते हैं प्रेजेंट. एरियाज ऑफ सिस्टिक डीजनरेशन इन द स्ट्रोमा आर कॉमन. Next question is mucogingival deformities are classified as what? They are classified as non-plaque induced lesions. Mucogingival deformities होती हैं वो non-plaque induced lesions में classify होती हैं. Let's go with the classification of periodontal diseases and conditions. First are gingival diseases. Gingival diseases includes plaque induced gingival disease or non-plaque induced gingival lesion. Alright. Second is chronic periodontitis. Chronic periodontitis could be localized, generalized. Then is aggressive periodontitis, which can also be generalized or localized. Then periodontitis is a manifestation of systemic disease. कोई भी systemic disease है उसकी manifestation में periodontitis अगर हो रही है तो there could be necrotizing periodontal diseases, that is necrotizing ulcerative gingivitis and necrotizing ulcerative periodontitis. इसके साथ साथ अगर abscess in periodontium है तो we can have gingival abscess, we can have periodontal abscess and we can have pericoronal abscess. ठीक है. नेक्स्ट पेरियोडोंटाइटिस एसोसिएटेड विद एंडोडोंटिक लीजन जिनको कि एंडोपेरियो लीजन्स बोला जाता है. ठीक है, एंडोपेरियो लीजन हो सकता है या पेरियो एंडो लीजन हो सकता है और इट कुड बी अ कंबाइंड लीजन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज एंड कंडीशंस, दैट इज टूथ रिलेटेड फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज प्लाक इंड्यूस्ड जिंजाइवल डिजीज और पेरियोडोंटाइटिस, जैसे कि क्राउडिंग हो गया टूथ के अंदर. ठीक है, आर्च की क्राउडिंग होगी. म्यूकोजिंजाइवल डिफॉर्मिटीज एंड कंडीशंस अराउंड द टीथ, जो म्यूकोजिंजाइवल जो पूरा टिश्यू है उसी में डिफॉर्मिटी बन रही है. ठीक है. तीसरा आता है म्यूकोजिंजाइवल डिफॉर्मिटीज एंड कंडीशंस ऑन ईडेंचुलस रिज एंड ऑक्लूजल ट्रॉमा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रीडिस्पोजेस अ पर्सन टू अनक. ठीक है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के लिए कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं? तो इनको एज अ जनरल टेंडेंसी हम स्टडी करते हैं. पुअर ओरल हाइजीन, स्मोकिंग इज़ अ फैक्टर, स्ट्रेस इज़ अ वेरी गुड फैक्टर. ठीक है, जो ये करवाता है. और इम्यूनोसप्रेशन, दीज 4 फैक्टर्स दे प्ले अ मेजर रोल इन एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस. इम्यूनोसप्रेशन आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट में हो सकता है या फिर HIV वगैरह कोई डिजीज़ है उसको वहाँ पे भी हो सकता है. Next question is, on a dental chair as an emergency measure, dentist should use diazepam as a drug of control in the serious clinical condition of which? देखो, diazepam will be used in status epilepticus. एपिलेप्सी का अगर सीजर आता है तो उस कंडीशन में हम diazepam को emergency में यूज़ कर सकते हैं. Status epilepticus is a condition in which the series of seizures occur in the patient without regaining consciousness. Patient अपनी consciousness regain कर ही नहीं पा रहा है. This is a condition that refers to the grand mal epilepsy. What is it referred to as? Grand mal epilepsy, and is a medical emergency. It is a medical emergency. The steps of management of status epilepticus include सबसे पहले airway patent करेंगे, then breathing, then circulation. Then diazepam is given 10 milligram IV.
ऑलराइट, एंड रिपीट डोज ओनली आफ्टर 15 मिनट्स. 15 मिनट के अंदर यू विल नॉट गिव एनी डोज ऑफ डायजेपम. If you are going with lorazepam instead of diazepam, IV can be given alternatively. ठीक है, तो 10 मिनट के बाद इसमें भी रिपीट कर सकते हैं. लोराजिपैम में आप ऑल्टरनेट दे सकते हो, एक बार डायजेपम दे दो, एक बार लोराजिपैम दे दो. लेकिन अगर वो कॉन्शियस हो जा रहा है, ठीक है, एपिलेप्सी रुक चुकी है, कॉन्शियस हो गया, तो ज़रूरत नहीं है. देन रेफर द पेशेंट टू एमरजेंसी. उससे जल्दी से एमरजेंसी में लेके जाओ और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलेगा पहले. Next question is, a worker in a battery factory presents with bluish grey gingival discoloration. इसके साथ साथ इसमें मेटालिक टेस्ट भी है, फटीग भी है. विच इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कॉज? तो यहाँ पे जो है वो लेड पॉइजनिंग हो रखी होती है. देर इज़ लेड पॉइजनिंग. लेड पॉइजनिंग और प्लम्बिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ this disease, that is bluish gray discoloration or metallic taste and fatigue in case of industry workers, especially in battery industry, paint industry and ceramic industries. Key oral signs include Burton's line. Burton's line आती है, metallic taste आता है and there is excess salivation. देखो बर्टन लाइन जो है उसी को, जो हमारी ब्लूइश ब्लैक लाइन है ऑन द गम्स ड्यू टू क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग, उसी को हम कह रहे हैं. सिस्टेमिक साइंस में क्या होता है इसमें? सिस्टेमिक साइंस में यू विल सी अनीमिया, abdominal pain, लीड कोलिक पेन होगी. कोलिक की पेन होगी मतलब बीच में आकर करेगी, फिर पीरियड्स में आकर करेगी वैसे पेन. एंड देर इज एनसेफेलोपैथी. नेक्स्ट इज अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ मसल क्रैम्प्स, लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द लेटरल आईब्रो, एलोपेशिया एंड कॉन्स्टिपेशन. हिज ब्लड इन्वेस्टिगेशंस इज मोस्ट लाइकली टू शो डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? सो इट विल शो द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, दिस इज नोन एज हर्टोगे साइन. हर्टोगेज साइन. It is a rare clinical stigma defined as thinning or complete loss of lateral 1/3 of eyebrows. Lateral 1/3 of eyebrows जो हैं वो उड़ जाती हैं. There is a loss. Although it was initially described by Belgian physician Eugene Hertoge for more than 100 years ago in patients with hypothyroidism. इसे यूजीन हर्टोगे ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, 100 साल पहले. It is now seen most in atopic dermatitis. Hertoge sign has also been reported in other clinical conditions including hypo में होता है, जब कम हो जाता है तब होता है, hypoparathyroidism, lepromatous leprosy and syphilis. ठीक है, it can be seen in secondary hypothyroidism where the serum TSH levels are very low. जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा कम होता है तो जो पेशेंट है वो मसल क्रैम्प्स, लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द लेटरल आईब्रो, एलोपेशिया और कॉन्स्टिपेशन के साथ रिपोर्ट करता है. और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है. ऑलराइट, कोई जेंडर प्रीडिलेक्शन नहीं दी गई है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 40-year-old फीमेल पेशेंट, she visits the OPD with a complaint of fever, headache and nausea. लैब इन्वेस्टिगेशन जब करवाई गई तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में 150 सेल्स पर ml के अंदर WBCs मिले. ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर. अब इन WBCs में से हमारे पास 40% जो थे वो न्यूट्रोफिल्स थे और 60% थे लिम्फोसाइट्स. इसके अलावा प्रोटीन और ग्लूकोज के लेवल्स जो थे वो नॉर्मल रेंज में थे. इट इज़ लाइकली टू बी डायग्नोस्ड एज मेनिंजाइटिस. मोस्ट लाइकली द कॉज कुड बी व्हाट? द कॉज इज़ वायरल मेनिंजाइटिस. ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस में हेडेक इज़ द मेन फीचर. हेडेक मेन फीचर होता है. नेक रिजिडिटी जनरली प्रेजेंट होती है. तो साइंस हम चेक करते हैं. फर्स्ट इज कर्निक साइन एंड सेकंड इज ब्रॉडेंस्की साइन. कर्निक साइन में पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में लेट जाता है. हिप को हम फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री पे, फिर नी को एक्सटेंड करवाते हैं. फिर उसमें पेन या रेजिस्टेंस अगर नी में आती है तो वहाँ पे मेनिंजियल इरिटेशन शो होता है. ठीक है, मतलब हमने पेशेंट को लेटा दिया, हिप को एक साइड पे फ्लेक्स कराया और 90 डिग्री के एंगल पे उसको नी को एक्सटेंड करा दिया. ठीक है, तो अगर उसको पॉजिटिव पेन या फिर रेजिस्टेंस हो रही है नी की एक्सटेंशन करते वक्त, तो वहाँ पे मेनिंजियल इरिटेशन या मेनिंजाइटिस का खतरा जो है वो देखा जाता है. ठीक है, सेकंड इज़ ब्रॉडेंस्की साइन. ब्रॉडेंस्की साइन में क्या होता है कि इसे पेशेंट में सुपाइन लौटा दिया हमने, फिर एग्जामिनर जो है वो पैसिवली फ्लेक्स करता है नेक को आगे को फ्लेक्स करवाता है. तो इनवॉलेंटरी फ्लेक्शन हो जाती है हिप्स या नीज की, मतलब नेक को आगे को हल्का सा फ्लेक्स कराएगा और पैर और जो हिप्स हैं वो ऊपर छाती की तरफ आ जाएंगे. दैट इज़ नोन एज ब्रॉडेंस्की साइन. ये मेनिंजियल इरिटेशन में होता है, स्पेशली मेनिंजाइटिस में. लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में कर्निक साइन और ब्रॉडेंस्की साइन दोनों यूजुअली एब्सेंट होंगे. ठीक है, अब सीजर्स और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अकर कर सकता है, लेकिन जनरली अकर नहीं करता है वायरल मेनिंजाइटिस के केसेस में. ऑल्टर्ड सेंसोरियम विल बी देयर.
ठीक है. अदर फीचर्स आर फीवर, myalgia, anorexia, vomiting and abdominal pain. If we go for the CSF examination of viral meningitis, तो वहाँ पे mostly सेल काउंट में लिम्फोसाइट्स देखे जाते हैं. स्लाइटली इंक्रीज प्रोटीन और नॉर्मल शुगर और नॉर्मल ग्लूकोज देखा जाता है. प्रोटीन लेवल स्लाइटली इंक्रीज मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, और बाकी शुगर और नॉर्मल जो है नॉर्मल शुगर ग्लूकोज जो है वो CSF के अंदर रहेगा. लेट्स गो विद द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ CSF. ठीक है, नॉर्मल में कलर जो होता है दैट इज क्लियर वाटर लाइक. 0 to 5 सेल्स होंगे पर मिलीमीटर क्यूब और पर CC ऑफ CSF. सारे सेल्स होंगे वो लिम्फोसाइट्स होंगे, सारे सेल्स लिम्फोसाइट होंगे. प्रोटीन जो होगा दैट इज 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. हाउ मच? 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज नॉर्मल. और ब्लड ग्लूकोज जो CSF में ग्लूकोज होगा दैट इज़ 50 to 70% ऑफ ब्लड ग्लूकोज. मतलब अगर ब्लड में हम 100 मान के चल रहे हैं तो उसका 70% या 50% से 70% की रेंज नॉर्मल के अंदर होगा CSF के अंदर. अब बात आती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में. देखो, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कलर विल बी टर्बिड. व्हाट काइंड ऑफ कलर? इट विल बी टर्बिड, धुंधला कलर हो जाएगा. सेल काउंट विल बी 200 to 20,000 पर ml और पर CC. ठीक है, मेनली जो सेल टाइप होगा वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स होंगे, PMNLs होंगे. ऑलराइट. प्रोटीन कंटेंट विल बी हाई इन CSF. ग्लूकोज विल बी लो. याद रखना, ग्लूकोज कैसा होगा? लो होगा. प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा. और अगर बाकी फाइंडिंग्स हम करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग आएगी इसके अंदर. ग्राम स्टेनिंग विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो भी है. जैसा भी ग्राम हमारे पास बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में अदर फाइंडिंग्स में ग्राम स्टेनिंग में पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देगा. नाउ वायरल मेनिंजाइटिस. वायरल मेनिंजाइटिस में कलर विल बी क्लियर. सेल काउंट 10 to 2,000. ज़्यादातर लिम्फोसाइट होते हैं, ज़्यादातर लिम्फोसाइट्स होते हैं. ठीक है. प्रोटीन कंटेंट माइल्डली इंक्रीज़ करेगा, बिल्कुल माइल्डली इंक्रीज़ करेगा. ग्लूकोज कंटेंट विल बी नॉर्मल. अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें तो वायरल आइसोलेशन या फिर PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो अगर हम करते हैं तो उसमें वायरस के लिए कल्चर जो है वो पॉजिटिव आएगा. चौथा एक यूनिक आता है हमारे पास दैट इज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में कलर विल बी स्ट्रॉ कलर्ड. ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है. CSF के अंदर जो फाइब्रिनोजन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वेब लाइक जो स्ट्रक्चर है CSF के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. ठीक है, दिस सपोर्ट्स द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज COB-WEB फॉर्मेशन. कॉब वेब फॉर्मेशन बोलते हैं इसको. सेल काउंट जो होता है ट्यूबरकुलर में दैट इज 100 to 5,000. 100 से 5,000 तक वेरी करता है. ज़्यादातर लिम्फोसाइट्स होते हैं. ठीक है. PMNLs जो हैं वो मेजरली प्रीडोमिनेट करते हैं इन द एक्यूट स्टेज. प्रोटीन कंटेंट विल बी हाई इन CSF. ग्लूकोज कंटेंट विल बी लो. अगर हम एसिड फास्ट बैसिलाई स्टेन अगर करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो कल्चर है वो पॉजिटिव आएगा CSF के लिए इन दिस ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस. नेक्स्ट, अ 60-year-old मेल chronic alcoholic patient. Male chronic alcoholic patient presents to the emergency department with a complaint of fever, hepatomegaly and anorexia. ठीक. Lab investigation showed hyperbilirubinemia, elevated serum alkaline phosphate levels. Histopathological examination revealed eosinophilic inclusion bodies within the hepatocytes. हिस्टोपैथ में क्या है? eosinophilic inclusion bodies हैं within the hepatocytes. What is responsible for these inclusion bodies in the hepatocytes? The answer is keratin filaments are responsible for these inclusion bodies. According to the symptoms and investigations, the patient is of primary biliary cirrhosis. The eosinophilic inclusion bodies within the hepatocytes are called as Mallory bodies. इनको बोलते हैं Mallory bodies. Mallory bodies are damaged intermediate filaments found in the cytoplasm of liver cells. These are damaged intermediate filaments found in cytoplasm of liver cells. They are also known as Mallory Denk bodies, DENK bodies, या फिर इनको Mallory Hyaline bodies भी बोलते हैं. हाइलिन जैसे कार्टिलेज होता है वैसे ही Mallory Hyaline bodies भी बोला जा सकता है इन eosinophilic inclusion bodies को. Mallory bodies are characteristic feature of liver cell injury and are associated with number of liver disorders, including alcoholic hepatitis, non-alcoholic steatohepatitis, that is fat induced hepatitis जिसमें फैटी लीवर हो गया होता है. उसके बाद आता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एंड विल्सन डिजीज. इन सभी के अंदर प्राइमरी विल्सन सिरोसिस, विल्सन डिजीज, स्टेटोहेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, उन सभी में हमारे पास मैलरी बॉडीज देखी जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 29-year-old मेल पेशेंट suffered trauma and came with deranged occlusion. On inspection, he suffered mandibular angle region fracture.
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ट्रीटमेंट प्लान। देखो, एक मिनी प्लेट दी जाएगी एट द एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज, दैट टू मीडियोलेटरली। See, the Maxime Champi popularized the treatment of mandible fractures with a mini plate fixation along with the ideal line of osteosynthesis. Champi ने बोला था कि जो ideal line of osteosynthesis होते हैं उसके साथ ही हम मिनी प्लेट्स लगाते हैं, ठीक है। The approach is a form of load sharing osteosynthesis, ठीक है, जहाँ पे लोड शेयर हो जाए, पूरे मैंडिबल में इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वहाँ पे हम जो है वो मिनी प्लेट्स वगैरह लगाएंगे, वहाँ पे हम स्टेबल या फिर स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट देना है वहाँ पे देंगे, ठीक है। सिंपल फ्रैक्चर पैटर्न्स में जहाँ पे एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ बोन स्टॉक प्रेजेंट है वहाँ पे हम ये चीज़ दे सकते हैं, मिनी प्लेट्स। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज दैट देयर आर 2 Champi लाइन्स इन द मैंडिबुलर एंगल रीजन। इट इज़ ओनली नेसेसरी टू प्लेस द प्लेट ऑन वन ऑफ दीज लाइन्स। समटाइम्स द सुपीरियर प्लेसमेंट इज़ देयर, कभी कभार हम सुपीरियरली प्लेट को प्लेस करते हैं, और देयर कैन बी एन अनरिकग्नाइज प्ले इन द इंफीरियर एंगल रीजन, ठीक है। अगर हम सुपीरियर प्लेस करें तो हो सकता है कि नीचे एक अनरिकग्नाइज स्प्ले रह जाए, एक अनरिकग्नाइज फ्रैक्चर का छोटा सा सेगमेंट रह जाए नीचे की साइड। एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लेसिंग अ प्लेट सुपीरियरली बिहाइंड द मोलर इज दैट द स्प्ले विल ऑफन क्लोज विद टाइम। अगर हम मोलर के पीछे वहाँ पे प्लेट को लगा देते हैं तो वहाँ पे स्प्ले जो है वो टाइम के साथ क्लोज कर जाता है। सो अ सिंगल प्लेट अलॉन्ग विद एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज, मतलब एक सिंगल प्लेट हम प्लेस करते हैं रनिंग along the external oblique ridge, that is sufficient to neutralize the forces in this trauma case fracture, ठीक है। और इसको हम करेंगे मीडियोलेटरली प्लेस, अंदर से, अंदर की साइड से बाहर को मोड़ रही होगी, ठीक है। दिस इज मीडियोलेटरली ऑब्लिक रिज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग LDH एंजाइम। तो जो ट्रू हमारे पास ऑप्शन है उसमें लिखा है कि LDH1 डिवाइडेड बाय LDH2 रेशो जब हाई हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ द सजेस्टिव फीचर ऑफ एक्यूट MI, acute myocardial infarction. A few % of normal individuals may have LD1 divided by LD2 ratios as high as 0.81. ठीक है, a ratio of 0.82 to 0.99 is suspicious of myocardial injury. It is suspicious of myocardial injury. अगर 1 से ज़्यादा हो जाता है ये वैल्यू, ठीक है, LD1 डिवाइडेड बाई LD2 जो है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, देन इट इज़ अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर मायोकार्डियल इंजरी. इफ़ अ क्लिनिकल क्राइटेरिया इज मेट इन अनस्टेबल एंजाइना, इट इंक्रीजेज द लेवल्स ऑफ LD1, सो LD1 डिवाइडेड बाई LD2 रेशो इज़ हाई. ठीक है, अगर प्रोग्रेसिवली LD1 डिवाइडेड बाई LD2 रेशो जो है वो हाई होती जाती है तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंस फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. Next question is, patient develops supraventricular tachycardia. Which drug can be used to prevent the paroxysmal transfer to the ventricle? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर supraventricular tachycardia हो गया, ठीक है, तो वो अराइज करता है फ्रॉम द एट्रिया और एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन, और एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द नैरो QRS कम्प्लेक्स, और ये एसोसिएटेड होता है QRS कम्प्लेक्स के साथ. द टैकीकार्डिया मे बी ड्यू टू द AV नोड री एंट्री टैकीकार्डिया. AV नोड का दोबारा से एक्टिवेशन हो जाता है. AVNRT इज AV नोड री एंट्री टैकीकार्डिया. एट्रियोवेंट्रिकुलर री एटरेंट टैकीकार्डिया जंक्शनल टैकीकार्डिया हो सकता है या फिर एट्रियल टैकीकार्डिया हो सकता है. मैनेजमेंट में क्या होता है, कैरोटिड साइनस मसाज एंड अदर मेथड्स विच इंक्रीज द वेगल टोन. ऐसे मेथड जो कि वेगल टोन को इंक्रीज करते हैं वो किया जाता है. वल्सल्वा मैन्यूवर करा जाता है. फेशियल इमर्शन इन कोल्ड वाटर, इट मे टर्मिनेट द अटैक ऑफ द टैकीकार्डिया. उससे टैकीकार्डिया थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है. इफ़ द फिजिकल मेथड्स आर नॉट इफेक्टिव, देन वी गिव एडिनोसिन, वेरापामिल, डिल्टियाजम, फ्लिक और बीटा ब्लॉटर्स so as to terminate the effect of attack of tachycardia. ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, फ्लिकेनाइड देंगे, वेरापामिल देंगे, डिल्टियाजम देंगे और एडिनोसिन देंगे ताकि ये जो अटैक ऑफ टैकीकार्डिया है ये शांत हो जाए. 4 ऑप्शन दिए थे, एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन, एस्पिरिन. ये तीनों नहीं देंगे, एडिनोसिन देते हैं. चौथा ऑप्शन दैट इज एडिनोसिन, दैट विल बी गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अल्कोहलिक पेशेंट, ठीक है, कंप्लेंट्स ऑफ ब्रेथलेसनेस फॉर लास्ट 2 days. 2 दिन से उसको ब्रेथलेसनेस है. उसके पैरामीटर्स जब हमने चेक किए तो PCO2 वॉज 90, PO2 वॉज 25, बेसिकली मिलीमीटर ऑफ मर्करी में लिखेंगे इसको. pH जो आई उसकी वो थी 7.12. व्हाट इज द रीज़न फॉर
अमंग फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो ऊपर हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की उसमें क्या रीज़न रहा होगा कि इतनी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, इतना O2 फॉल कर गया और pH जो है वो स्लाइटली बेसिक हो गई। देखो, इट इज़ अ केस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS है, ठीक है। Normally, the respiratory system maintains the partial pressure of oxygen, that is PO2, greater than 95 millimeter of mercury, and PCO2 is 36 to 45 millimeter of mercury. Failure to maintain these partial pressures is called as respiratory failure. अगर ये partial pressure body maintain नहीं कर पा रही है, then it is known as respiratory failure. Type 1 respiratory failure may be acute or chronic. Type 1 may be acute or chronic. Now, एक्यूट इज़ करेक्टराइज बाय लो PO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और नॉर्मल या फिर लो PaCO2 होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल हो सकता है या उससे लो हो सकता है, 2 hours और डेज, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट कॉजेज आर पल्मोनरी एडीमा, निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड एक्यूट एस्थमा। जब यही कंडीशन जो है जिसमें PCO2 जो है वो नॉर्मल से हाई की तरफ चला जाता है, तो वो क्रॉनिक कंडीशन को सिग्निफाई करता है कि पेशेंट जो है वो आपके पास काफ़ी लेट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेनिसिलामीन इज गिवन एज एन एंटीडोट इन विल्सन्स डिजीज टू प्रिवेंट और ट्रीट द मेटल पॉइजनिंग। व्हाट डज इट डू? इट एनहांसेस द कॉपर एक्सक्रीशन। जो पेनिसिलामीन है वो कॉपर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करा देता है। देखो, विल्सन डिजीज इज अ डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेपेटोसेलुलर डिजेनरेशन ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर इन द बॉडी, ठीक है। अब डेक्स्ट्रोपेनिसिलामीन देते हैं हम, डेक्स्ट्रोपेनिसिलामीन देते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज कॉपर चीलेटिंग एजेंट। ये कॉपर को चीलेट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन डेक्स्ट्रोपेनिसिलामीन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ल्यूपस लाइक सिंड्रोम, ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड ब्लड डिस्क्रेजियास। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम में क्या होगा? ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स जो है वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि फीवर, आर्थरेल्जिया, रैश जो है वो कॉमनली देखा जाता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या करेगा? इम्यून मीडिएटेड डीमाइलिनेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व जो है ये पेनिसिलामीन जो है वो करवा देता है। इसके साथ साथ ये टॉक्सिक इफेक्ट और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी करा देता है न्यूरल टिश्यू के अंदर, जिससे कि पार्शियल विजुअल लॉस हो सकता है, पेन इन द आई मूवमेंट हो सकती है। ब्लड डिस्क्रेजिया, ब्लड डिस्क्रेजिया मतलब कि जो बोन मैरो है उसी को सप्रेस करना शुरू कर देता है डेक्स्ट्रोपेनिसिलामीन, जिससे कि एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, क्योंकि कुछ बन ही नहीं पा रहा, ना आरबीसी बनेगा, ना WBC, ना प्लेटलेट्स। Next question is, richest source of stem cells for regenerative endodontic therapeutics is what? Regenerative endodontic therapeutics के लिए जो सबसे ज़्यादा richest source of stem cell होता है that is pulp. Pulp के अंदर सबसे ज़्यादा pluripotent cells होते हैं, जिनके पास कैपेसिटी होती है for angiogenic, chondrogenic, osteogenic, adipogenic, neurogenic differentiation. मतलब वो ब्लड वेसल भी बना सकता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बना सकता है, बोन भी बना सकता है, एडिपोसाइट्स भी बना सकता है और न्यूरॉन्स भी बना सकता है, इन सम केसेस एक्सीडिंग दैट ऑफ द बोन मैरो स्टेम सेल्स। पल्प के अंदर जो कैपेसिटी है वो बोन मैरो के सेल्स से भी ज़्यादा एक्सीड करती हुई देखी जा सकती है कुछ केसेस के अंदर जो रिसर्च हुई है उसमें। द पल्पल टिश्यूज ऑफ एक्सफोलिएटेड डेंटल टीथ एंड permanent third molars may serve as a suitable source of stem cells for future stem cell based therapy। ठीक है, हमारे जो प्राइमरी टीथ होते हैं उनको एक्सफोलिएशन के जब टाइम आ रहा होता है तब उनको निकाल के उनके अंदर का जो पल्प है उसको हम स्टेम सेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दे आर वायबल इवन आफ्टर क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, सो द एप्लीकेशन ऑफ DPSC इन रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री इज़ वेरी मच, ठीक है, एंड मेडिसिन में रीजनरेशन ऑफ बोन और न्यूरल टिश्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोमिसेस जो है वो होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडियोथेरेपी इज़ नॉट यूज्ड इन। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, कहाँ रेडियोथेरेपी आप यूज़ नहीं करेंगे। एक स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है, एक ट्यूमर है विद लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, तीसरा है मेटास्टैटिक बोन लीजन, चौथा है फाइब्रो ऑसियस लीजन। फाइब्रो ऑसियस लीजन में आप कभी भी क्यों कर रही हैं रेडियोथेरेपी? ठीक है, रेडियोथेरेपी मेनस्टे हम क्यों करते हैं? बेसिकली कीमोथेरेपी है ये, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए करेंगे, तो इसमें ट्यूमर ऑफ द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टैटिक बोन लीजन में कर सकते हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर अगर बेनाइन या मैलिग्नेंट जैसा भी है तो वहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास फाइब्रो ऑसियस लीजन है खाली, इट इज़ नॉट अ मेटास्टैटिक थिंग, so why will we use radiotherapy? It is just a common sense question. Let's discuss all the options. Radiotherapy is mainstay along with the surgery and chemotherapy in management of all the malignant tumors. Salivary gland tumors, they represent a multitude of situations in histology.
where surgery is mainstay of treatment and radiotherapy is frequently needed for malignant tumors. In case of T3 and T4 tumors, हम nodal involvement अगर होती है, extra parotid invasion अगर हो रहा है, पॉजिटिव हाई रिसेक्शन कर सकते हैं, हिस्टोलॉजिकली हाई ग्रेड ट्यूमर है, तो अगर लिम्फोवैस्कुलर उसका स्प्रेड हो जाता है, देन वी यूज़ द रेडिएशन थेरेपी, ठीक है. या फिर अनरिसेक्टेबल ट्यूमर है, ट्यूमर हम काट के नहीं निकाल पा रहे हैं बाहर, तो वहाँ पे भी हमें रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है. जो हमारा सही ऑप्शन, जो मतलब ऑप्शन हमने रूल आउट किया है, दैट इज़ फाइब्रो ऑस्टियस लीजन्स, वो यूजली कंजर्वेटिव थेरेपी से और प्राइमरली उनमें डिफॉर्मिटी हम नहीं होने देते, उस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा सकता है. एनी अंडरलाइंग एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज शुड बी ट्रीटेड एंड उससे फाइब्रो ऑस्टियस लीजन जो है वो यूजली रिजॉल्व कर जाता है. Surgical therapy with curettage and replacement of wound defect with autograft and allograft is usually done in these lesions, and that results in resorption of the graft at the surgical site and closure of the defect in these lesions. ठीक है. Hence, radiotherapy is not required in management of fibro-osseous lesions. In case of malignant transformation, ये lesion पहले ही radio resistant होते हैं. फाइब्रो ऑस्टियस लीजन्स रेडियो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं अगर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको रेडिएशन थेरेपी देने की, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी कोई काम ही नहीं करेगी यहाँ पे फाइब्रो ऑस्टियस लीजन के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द जॉइंट्स. रेडियोग्राफ शोज मल्टी लोकुलर रेडियोलुसेंसीज एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन शोज हाई सीरम कैल्शियम लेवल्स. कैल्शियम लेवल राइज कर गए हैं. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है वो डायग्नोस हो चुका है. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का दूसरा नाम क्या है ये पूछता है. It is also known as Brown's tumor of long bones. What it is known as? Brown's tumor of long bones. The case being described here is hyperparathyroidism. ठीक है, leading to bone changes. Primary hyperparathyroidism is a disease in which the parathyroid gland elaborately produces excess quantity of parathyroid hormone. ठीक है, जब पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो बोन है उससे कैल्शियम जो है बाहर को निकल के ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो बढ़ जाते हैं. ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स दैट आर फर्स्ट द सिम्टम ऑफ द डिजीज़. ठीक है, पहले पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर से क्या होता है कि पेन होती है बोन के अंदर और जॉइंट स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है. ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं. द बोन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन शोज जनरल रेडियोलुसेंसी एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द नॉर्मल ग्रुप. जैसे ये हमारे पास नॉर्मल बोन है तो इसकी एक कॉमन वाइट रेडियो ओपेसिटी होती है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या होता है कि इसमें रेडियोलुसेंसी होना शुरू हो जाती है. ठीक है, उसमें दिखता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, वो जो बोन है वो अंदर से खोखली होती जाती है. लेटली जब बाद का स्टेजेस आते हैं तो उसमें वेल डिफाइंड राउंड ओवल रेडियोलुसेंसी जो है वो डेवलप कर जाती हैं, जिनको जो लॉब्यूलेटेड हो सकती हैं, मतलब ऐसी ऐसी रेडियोलुसेंसी जो है डेवलप हो जाएंगी. इसको हम कहते हैं ब्राउन्स ट्यूमर. Small cystic areas may also be seen in the calvarium, and large or small sharply well-defined radiolucencies may be present in maxilla or mandible. ठीक है, कंफर्मेशन कैसे करते हैं इसकी? ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है, जिसमें हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है. हाइपर कैल्सीमिया होता है तो कैल्सीमिया को काउंटर करने के लिए फॉस्फेटीमिया भी बढ़ जाता है. ठीक है, और सीरम पैराथॉर्मोन लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. इसके साथ हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाता है, मतलब अगर कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा है तो वो यूरिन से भी ज़्यादा बाहर निकलता है. ठीक है, एंड देयर इज़ हाइपोस्फैटोरिया, मतलब किडनी जो है अब फॉस्फेट का भी हाई एक्सक्रीशन शो करना स्टार्ट कर देती हैं, PO4 का. ठीक है, जिससे कि किडनी जो है वो एक्सेस ऑफ फॉस्फेट को लूज़ कर देती हैं. दैट लीड्स टू मतलब हाइपोफॉस्फेटीमिया बॉडी के अंदर हो जाता है. इसमें बोन डिमिनरलाइजेशन, रिकेट्स और ऐसी कंडीशन में भी ये चीज़ देखी जाती है. द सीरम अल्कलाइन लेवल्स ऑफ फॉस्फेट ऑल्सो इंक्रीज्ड इन द ऑस्टियोलिटिक लीजन्स. Next question is, what is the TNM staging of a tumor for a patient presenting with a tumor size of 4 cm which involves the ipsilateral lymph node with the size 6 cm showing metastasis? तो इसकी TNM staging बनती है 4C. ओके, लेट्स डिस्कस द TNM staging. सबसे पहले आता है प्राइमरी ट्यूमर की बात. प्राइमरी ट्यूमर में इफ वी से TX तो मतलब कि प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी एक्सेस, मतलब प्राइमरी ट्यूमर को हम असेस नहीं कर सकते. सेकंड आता है T0. T0 में होता है देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर. जीरो का मतलब है कि कोई एविडेंस ही नहीं है प्राइमरी ट्यूमर का. तो उसके बाद आता है TIS. इसका मतलब होता है कार्सिनोमा इन सीटू है. TIS मीन्स कार्सिनोमा इन सीटू. इसके बाद आता है T1. T1 में मतलब ट्यूमर प्रेजेंट है 2 सेंटीमीटर या फिर उससे कम उसका साइज़ है इन द ग्रेटेस्ट डायमेंशन. जहाँ पे सबसे बड़ा डायमेंशन है वहाँ पे 2 सेंटीमीटर से अगर कम साइज़ रहता है तो T1 रहेगा. उसके बाद बात आती है T2 की. T2 में जो ट्यूमर साइज़ है दैट इज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर बट नॉट मोर देन 4 सेंटीमीटर. 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा इन द ग्रेटेस्ट डायमेंशन.
T3 में क्या होता है कि ट्यूमर का साइज़ जो होता है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा ट्यूमर का साइज़ होता है। फिर आता है T4A, दैट इज़ लिप, T4A ओरल कैविटी एंड T4B इज़ लिप एंड ओरल कैविटी। T4A एक हमारे पास लिप के लिए आता है, दैट इज़ ट्यूमर इन्वेड्स थ्रू द कॉर्टिकल बोन, inferior alveolar bone and the floor of the mouth or skin or nose। कहाँ कहाँ? कॉर्टिकल बोन, inferior alveolar nerve, floor of the mouth या फिर skin, चिन या नोज में वो वहाँ से इन्वेड कर रहा है, दैट इज़ अ T4A लिप। फिर T4A ओरल कैविटी आता है, ट्यूमर इन्वेड्स थ्रू द कॉर्टिकल बोन इनटू डीप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग। ट्यूमर कॉर्टिकल बोन से टंग मसल्स में चला जाता है, जैसे जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस एंड स्टाइलोग्लॉसस। फिर इन मसल्स में जाके इट विल स्टार्ट मेटास्टाइजिंग, ऑलराइट, या मैक्सिलरी साइनस में जा सकता है या फिर स्किन ऑफ द फेस के ऊपर जो T4A जो है वो ओरल कैविटी वाला जा सकता है। T4B इट इज़ लिप एंड ओरल कैविटी, 4B इज़ लिप एंड ओरल कैविटी। ट्यूमर इन्वेड्स द मैस्टिकेटरी स्पेस, टेरिगॉइड प्लेट्स और स्कल बेस एंड एनकेसेस द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कहाँ कहाँ जा रहा है? या तो इन्वेड कर रहा है मैस्टिकेटरी स्पेस को, टेरिगॉइड प्लेट्स को, स्कल बेस को, और इनकेस कर ले रहा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। फिर अगली चीज़ आती है एन एक्स अगर हम लिखते हैं तो रीजनल लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी असेस्ड, जो लिम्फ नोड्स होते हैं दे कैन नॉट बी असेस्ड। N0 लिखते हैं तो नो लिम्फ नोड मेटास्टैसिस, मतलब कोई भी मेटास्टैसिस नहीं हुई है। एन का मतलब ही मेटास्टैसिंग के लिए, मतलब लिम्फ नोड जब इन्वॉल्व हो जाते हैं मतलब मेटास्टैसिस होना शुरू हो गई है। N1 में क्या होता है? मेटास्टैसिस सिंगल इप्सिलेटरल लिम्फ नोड में होती है। सिंगल इप्सिलेटरल लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व इन N1 और 3 सेंटीमीटर से कम लिम्फ नोड का साइज होता है इन द ग्रेटेस्ट डायमेंशन। फिर N2 की बात आती है, N2 में मेटास्टैसिस स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। N2 के अंदर आता है N2A, N2B, N2C। अगर N2A की बात हो रही है, N2A में मेटास्टैसिस सिंगल एप्सिलेटरल लिम्फ नोड की होगी, मोर देन 3 सेंटीमीटर इन साइज बट नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब 3 से 6 सेंटीमीटर इन साइज तक लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा N2A के अंदर, ठीक है। अब आती बात N2B की। N2B में क्या होता है कि मेटास्टैसिस इज़ मल्टीपल। N2B में मेटास्टैसिस मल्टीपल होता है, इप्सिलेटरल लिम्फ नोड्स होते हैं, लेकिन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसी का साइज़ नहीं होता 2B में। फिर आता है N2C। N2C में मेटास्टैसिस इज़ बायलेटरल, बायलेटरल मेटास्टैसिस हो जाएगी। कॉन्ट्रालेटरल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे मान लो ऊपर की साइड एक लेफ्ट साइड के लिम्फ नोड्स है तो नीचे जाते जाते राइट साइड के लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ नहीं होता है N2C में, लेकिन बायलेटरल चल जाता है और कॉन्ट्रालेटरल लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आती है बात N3 की। N3 में मेटास्टैसिस लिम्फ नोड्स में हो जाता है और 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा लिम्फ नोड हो जाता है इन द ग्रेटेस्ट डायमेंशन। अब बात आती है M के बारे में। M इज़ मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस में M0 अगर लिखा हुआ है तो कोई डिस्टेंस मेटास्टैसिस नहीं है, देयर इज़ अ नो डिस्टेंस मेटास्टैसिस। और M1 अगर लिखा हुआ है तो डिस्टेंट मेटास्टैसिस इज प्रेजेंट। इसमें सिर्फ 2 ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल है अभी तक। अब बात करते हैं स्टेज 0 में क्या होगा। स्टेज 0 की बात कर रहे हैं। कार्सिनोमा इन सिटू इज प्रेजेंट, N0 देयर इज़ नो डिस्टेंस मेटास्टैसिस, दिस इज स्टेज 0। देन स्टेज 1। स्टेज 1 में ट्यूमर इज़ प्रेजेंट जिसका एक साइज़ है, ठीक है, N0 और M0। T1 प्रेजेंट होगा, T1 प्रेजेंट होगा। स्टेज 2 में, स्टेज 2 में T2 प्रेजेंट होगा, देयर इज़ नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, देयर इज़ नो मेटास्टैसिस, ऑलराइट। अब स्टेज 3 की बात आती है। स्टेज 3 से हमारे पास 2 स्टेजेस शुरू हो जाती हैं, ठीक। 2 कंडीशन बनती है स्टेज 3 में, या तो T1 या T2 पॉजिटिव है या उसके साथ N1 पॉजिटिव है, मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है और लिम्फ नोड का साइज़ भी है, ठीक है, दैट इज़ N1। या दूसरी कंडीशन आती है दैट इज़ T3। T3 में N0 या N1 हो सकता है, N0 हो सकता है, N1 हो सकता है, और मेटास्टैसिस विल नॉट बी देयर। दिस इज स्टेज 3। दोनों स्टेज 3 में ही गिने जाएंगे। देन वी हैव स्टेज 4A। 4A स्टेज 4A में वी विल हैव T1 या T2 या T3, इसके साथ N2 होगा और M0 होगा। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसी स्टेज में, स्टेज 4A के अंदर दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ T4A। T4A जो है ट्यूमर की स्टेज है, ठीक है। इस T4A के साथ या तो N0, N1 या N2 इनमें से कुछ भी होगा, तो इसको हम कहेंगे स्टेज 4A, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेज 4B।
स्टेज 4B जो है इसमें जो कोई भी टी हो सकता है, एनी टी कुड बी देयर, एनी टी के साथ लिम्फ नोड का जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर हो सकता है, दैट इज़ N3, और मेटास्टैसिस इसमें नहीं होती है। स्टेज 4B का दूसरा ऑप्शन है, दैट इज़ T4B में जो ट्यूमर है वो प्रेजेंट है। तो कोई भी N हो, एनी N, M0, इट विल बी अंडर स्टेज 4B, ठीक है। लास्ट में आता है स्टेज 4C। 4C में एनी ट्यूमर, एनी N लेकिन M1 है, मेटास्टैसिस यहाँ हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर का ये है, ट्यूमर 4 सेंटीमीटर का है और लिम्फ नोड हमारा 6 सेंटीमीटर का है, मतलब ये 3 पे आ चुका है। तो हमारी जो स्टेज थी दैट इज स्टेज 4C। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें मेटास्टैसिस पॉजिटिव बताई हुई है, M1 बताया हुआ है। इफ़ मेटास्टैसिस इज पॉजिटिव देन कुछ नहीं सोचना है, सीधा स्टेज 4C इज टेकन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सॉल्युबल सीमेंट इज विच वन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सिलिकेट, फॉस्फेट, पॉलीकार्बोक्सिलेट एंड GIC। इनमें से सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल सीमेंट होता है दैट इज़ अ पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। ऑलराइट, लेट्स गो विद द थ्योरी। फॉर aqueous based cements the solubility increases in the order, GIC is least soluble। फिर उसके बाद आती है हमारे पास जिंक फॉस्फेट GIC से ज़्यादा soluble होता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास सिलिकेट सीमेंट्स जिंक फॉस्फेट से भी ज़्यादा soluble होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आता है हमारे पास पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट जो कि सबसे ज़्यादा soluble सीमेंट होता है इन चारों में से, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट कास्टेबल सिरेमिक वाज व्हाट? First castable ceramic was Dicor, DICOR. It was the first castable ceramic. Let's go with the theory. The first commercially available castable ceramic for dental use was Dicor, that was developed by Corning Glassworks and marketed by Dentsply International. Next, एक CD patient है, maxillary or mandibular occlusal rims are placed in the oral cavity. When patient protrudes the mandible, जब mandible उसने आगे लेके आया तो triangular space create हो जाता है posteriorly. The description refers to what? This refers to Christensen phenomena. क्या बोलते हैं इसको? Christensen phenomena. Let's go with the theory. Compensating curves. It is an anterior posterior curvature in the occlusal surface of the complete denture in the sagittal plane. ठीक है, anterior posterior curvature जो भी हमारे CD का हमने बनाया है sagittal plane में, that's a compensating curve. And the mediolateral curvature in the frontal plane. Mediolaterally क्या curvature बन रहा है in the frontal plane, ठीक है। The compensating curves are also called because they compensate for the presence of natural dentition, ठीक। Compensating curves may be increased or decreased in an artificial dentition so as to achieve balance occlusion. That is, उस balance occlusion को achieve करने के लिए अगर हम compensating curve को इतना लिमिट से आगे ले जा रहे हैं कि posteriorly एक triangular space बन जा रहा है, so that phenomena will be knowing as Christensen phenomena. Next question is, to a patient with edentulous mandible where we cannot give a full implant, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे उसकी रिज उतनी पतली है, चाहे वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, या फिर रिज में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक बड़ा इम्प्लांट झेल सके, ठीक है। तो वहाँ पे एक डेंटिस्ट डिसाइड करता है कि वो मिनी डेंटल इम्प्लांट देगा। क्यों कर रहा है ये डिसाइड, ये पूछा गया है। दिस इज़ डन टू अचीव अ डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस इन कम्प्लीटली हील्ड सॉकेट। वो सॉकेट जो है दैट इज़ इनसफिशिएंट इन विड्थ एंड इनसफिशिएंट इन हाइट, वहाँ पर हमें मिनी इम्प्लांट यूज़ करने होते हैं जहाँ इनसफिशिएंट विड्थ और हाइट होती है। मिनी डेंटल इम्प्लांट्स और MDIs दे आर इंडिकेटेड व्हेन द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फॉर रिटेंशन ऑफ द ओवरडेंचर मिनी डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो दिए जाते हैं इन द नैरो एल्वियोलर रिजेस, ठीक है। ऐसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, नैरो एल्वियोलर रिज हो गई, या फिर जहाँ पे ऐसे पेशेंट है जहाँ पे हम लेस इन्वेसिव प्रोसीजर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, वहाँ पे इम्प्लांट जो है वो टिकने की संभावना जो है वो बहुत कम है, तो मिनी इम्प्लांट का प्रोसीजर कर सकते हैं, मिनी डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेसर इन्वेसिव प्रोसीजर है। और यहाँ पे विदाउट द नीड ऑफ बोन ग्राफ्टिंग यू कैन इम्प्रोवाइज विद द मिनी डेंटल इम्प्लांट, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स को यूजुअली ऑगमेंटेशन प्रोसीजर जो है चाहिए रहता है, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स को ये भी नहीं चाहिए रहता। तो ऐसे पेशेंट जिनको ऑगमेंटेशन भी नहीं करवानी है वहाँ पे हम मिनी डेंटल इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। देखो, ऑगमेंटेशन प्रोसीजर का मतलब है कि मान लो हमारे पास बोन की थिकनेस उतनी नहीं है, तो हम बोन को स्प्लिट करके बोन में ग्राफ्ट डाल के बोन की उतनी थिकनेस बना रहे हैं पहले, फिर उसमें हम इम्प्लांट डालेंगे। तो ये चीज़ भी बाईपास हो जाती है इन द मिनी डेंटल इम्प्लांट।
Next, a patient complains of severe pain in the jaws. With the history, it was noted to be trigeminal neuralgia or neuralgic pain. Which of the following drug can be given to the patient as the treatment? तो हम देते हैं कार्मेज़िपाइन. The attacks or pains of trigeminal neuralgia are probably caused by a group of pathologically hyperexcitable sensory trigeminal neurons that discharge simultaneously or spontaneously, that exhibit abnormal behavior after discharging and demonstrate abnormal spread of the excitation of the potential of these discharging neurons. ठीक है, प्राइमरली एफरेंट न्यूरॉन्स में जो है वो एक्सेसिव डिस्चार्ज शो करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सेसिव स्पॉन्टेनियसली उसका एक्साइटेशन हाइपर एक्साइटेबल स्टेज स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन से ब्रेन की तरफ पेन के सिग्नल्स बहुत ज़्यादा चले जाते हैं. डिफरेंट मैकेनिज्म्स अकर इन एपिलेप्सी. ठीक है, और ये मैकेनिज्म जो है वो लगभग सिमिलर होता है टू ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाले मैकेनिज्म. जैसे स्पाज्म एपिलेप्सी में हो रहे हैं, वैसे ही वही पाथवे जो है वो लगभग फॉलो होता है इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. तो बहुत ज़्यादा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं इन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की पेन. लेकिन कार्मेज़िपाइन एक ऐसा ड्रग है जो कि हाईली स्पेसिफिक है ओनली फॉर रिलीविंग द ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पेन. ठीक है, और किसी अदर टाइप ऑफ फेशियल पेन में कार्मेज़िपाइन इतना कारगर नहीं है. ठीक है, और उसको दिया भी नहीं जाना चाहिए किसी और अदर टाइप ऑफ पेन में. इट हैज़ देयरफॉर बीन सजेस्टेड दैट रिस्पॉन्स कैन बी अ डायग्नोस्टिक इंडिकेटर, कि अगर हम कार्मेज़िपाइन देते हैं उसके बाद पेशेंट में पेन चली जाती है तो दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक इंडिकेटर कि उसमें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की दिक्कत है. कार्मेज़िपाइन देंगे 100 मिलीग्राम 3 टाइम्स देंगे और उसको टाइट्रेट कर देंगे 1 से 5 वीक्स के ऊपर. ठीक है, until either remission is achieved or side effects or toxicity are unacceptable. मतलब या तो बंदा थोड़ा सा ठीक हो रहा है, थोड़ी बहुत पेन से वो बर्दाश्त से मतलब उसके अंदर आ रही बर्दाश्त के अंदर, या फिर टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स अगर आने शुरू हो जा रहे हैं, तब तक हम कार्मेज़िपाइन जो है वो 100 मिलीग्राम देते रहते हैं. ठीक है, 3 टाइम्स अ डे देते हैं और उस 3 टाइम्स अ डे की डोज को हम 1 से 5 वीक्स के प्रोलॉन्ग इंटरवल में देते रहते हैं. ठीक है, 100 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे टाइट्रेटेड ओवर 1 to 5 वीक्स पीरियड. लेकिन कंप्लीट इसमें रिलीफ जो है वो पेशेंट को नहीं मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट अप क्वेश्चन. सलाइवा इज रिच इन विच एंजाइम? सलाइवा इज रिच इन सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है हमारे पास सलाइवरी अल्फा अमाइलेज. इनका एक्टिवेटर जो होता है दैट इज क्लोराइड. क्लोराइड एक्टिवेट्स द सलाइवरी अमाइलेज और ये एक्ट किसके ऊपर करती है? स्टार्च के ऊपर. ठीक है, बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं इसमें वो होते हैं हाइड्रो, बेसिकली डेक्सट्रोज होते हैं, डेक्सट्रोज मेटोज, ये चीज़ें जो है जो स्टार्च के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वही चीज़ें इसमें बनती हैं. नेक्स्ट आती है लिंगुअल ग्लैंड्स. लिंगुअल ग्लैंड में लिंगुअल लाइपेज होती है. सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज, लिंगुअल ग्लैंड से निकलती है लिंगुअल लाइपेज. लाइपेज किसका ब्रेकडाउन करता है? फैट्स का. ठीक है, या ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन करता है. तो जो कैटालिटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो ब्रेकडाउन से प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज़ फैटी एसिड्स प्लस 1,2 डाई असाइल ग्लिसरॉल्स. Fatty acids plus 1,2 diacyl glycerols. Next question is all of the following muscles contribute to the elevation or closing of the mandible except. देखो जो जितने मसल है वो मैक्सिमम क्लोजिंग ऑफ द मैंडिबल करवाते हैं, लेकिन लेटरल टेरिगॉइड जो है वो ओपनिंग ऑफ द मैंडिबल करवाता है. ठीक है, लेटरल टेरिगॉइड इज द मसल दैट इज इन्वॉल्व इन जॉ ओपनिंग एंड जॉ प्रोट्रूजन. ठीक है, वेयर एज मैसेटर टेम्पोरालिस मीडियल टेरिगॉइड, मैसेटर टेम्पोरालिस मीडियल टेरिगॉइड MTM वो मैंडिबल को एलिवेट करवाते हैं या फिर क्लोज करवाते हैं. ठीक है.